नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। शशि थरूर ने G20 डिक्लेरेशन की जमकर तारीफ की तो लोगों की भी प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली और ऐसे लोगों ने कांग्रेस के लिए झटका बता दिया तो वहीं बीजेपी ने भी शशि थरूर के बयान की तारीफ की और कहा कि काश कुछ और कांग्रेस के नेता वो भी शशि थरूर की तरह अच्छे कामों की सराहना कर पाते। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं शशि थरूर का आखिर क्या था बयान। भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुई G20 शिखर सम्मेलन को अब तक का सबसे सफल सम्मेलन बताया जा रहा है। इस सम्मेलन से दुनिया भर के विकास और शांति और समृद्धि के लिए कई फैसले निकलकर सामने आए। इसके साथ ही भारत ने G20 के घोषणा पत्र को सफलतापूर्वक पास करा लिया, जो एक जटिल काम माना जा रहा था। अब विपक्षी दलों के नेता भी सम्मेलन की सफलता के समर्थन में आ गए हैं। बता दें आपको, हाल ही फिलहाल में देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भी इसे लेकर काफी तारीफ की थी मोदी सरकार की, और अब कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने भी G20 के घोषणा पत्र को एक बड़ी कूटनीतिक जीत बताई है। थरूर ने कहा कि G20 सम्मेलन का दिल्ली घोषणा पत्र निस्संदेह भारत के लिए एक कूटनीतिक जीत है। यह एक अच्छी उपलब्धि है क्योंकि जब तक G20 शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया था तब तक यह उम्मीद की जा रही थी कि कोई समझौता नहीं होगा। तो आप देखिए किस तरीके से शशि थरूर वो कह रहे हैं कि इसे एक बड़ी जीत बता रहे हैं और क्या कुछ कहते नजर आए वो जरा विस्तार से सुनिए। The Delhi Declaration is undoubtedly a diplomatic triumph for India. It's a good achievement because right until the G20 summit was being convened, the widespread expectation was there would be no agreement, and that therefore a joint communique might not be possible. We might have to end up with a chairman's summary. The reason for that, in particular, the main reason was the big gulf between those who wanted a condemnation of the Russian war in Ukraine and those like Russia and China who wanted no mention whatsoever of that subject. India was able to find a formula to bridge that gap, and that is a significant diplomatic achievement because when there is a summit without a joint communique, it is always seen as a setback for the chairman. Here, the chairman has pulled off a diplomatic triumph. The overall presidency has been different from previous presidencies, and there are both good and bad elements in it. With the G20 summit itself, we saw two very disappointing developments. One was the complete exclusion of the public interest from the summit. You found, for example, the shutdown of Delhi for 3 days with great difficulties caused to daily wage workers and others who had no income for those days. The attempt to hide poverty rather than to deal with the poor and assist them during this difficult time. This was really disappointing. The second negative in terms of the summit itself was the complete failure to accommodate the opposition. The same spirit of accommodation and conciliation that we saw in achieving the declaration was not extended in the domestic concept, in the domestic context to Indians. The leader of the opposition was not invited. The opposition members of parliament were not invited, not even the members of the relevant parliamentary committees dealing with foreign affairs. Nobody was invited to any of the events, the receptions, or the dinner. And the result is that a democracy, a country that called itself the mother of democracy, was showcasing an event from which the democratic opposition was excluded. I thought that was very unfortunate. तो जैसा कि आपने सुना, वो कह रहे हैं कि किसी को नहीं लगा था कि ये समझौता हो पाएगा। इस कारण एक संयुक्त विज्ञप्ति संभव नहीं थी। यही मान रहे थे कि बैठक को एक अध्यक्ष के सारांश के साथ समाप्त करना पड़ सकता है। दूसरी ओर थरूर ने G20 सम्मेलन के दिल्ली बंद होने के दिहाड़ी मजदूरों और अन्य लोगों की कठिनाइयों पर भी अपनी बात रखी और कहा कि सम्मेलन में विपक्ष के नेता, सांसद, विपक्षी सदस्यों और यहाँ तक कि विदेशी मामलों से संबंधित संसदीय समितियों के सदस्यों को भी नहीं बुलाया गया, जो कि काफी निराशाजनक है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इसे लेकर G20 की सदस्यों की नई दिल्ली घोषणा पत्र की कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन की सराहना करते हुए कहा कि निस्संदेह भारत के लिए कूटनीतिक जीत है। उन्होंने एक विशेष इंटरव्यू भी दिया न्यूज एजेंसी को, जहां उन्होंने कहा कि यह एक अच्छी उपलब्धि है क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन बुलाए जाने तक इस बात की ज्यादा उम्मीद थी कि कोई समझौता संभव नहीं होगा, इसीलिए एक संयुक्त बयान जारी कर संभव नहीं हो सकता और हमें G20 शिखर सम्मेलन का समापन अध्यक्ष से ही जुड़ा होगा और उसके बयान के साथ ही करना पड़ सकता है। यानी किसी भी तरीके से कुछ भी नहीं आप कह सकते हैं देखने के लिए मिलेगा। गौरतलब है कि इसे लेकर G20 शिखर सम्मेलन के
उद्घाटन के दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई दिल्ली G20 लीडर समिट घोषणा पर आम सहमति बन गई थी। शशि थरूर ने नई दिल्ली घोषणा पर सभी सदस्य देशों के बीच आम सहमति बनाने के लिए भारत की सराहना की। थरूर ने कहा कि उन लोगों के बीच बड़ी खाई थी जो यूक्रेन में रूसी हमले की निंदा करना चाहते थे और रूस और चीन जैसे लोग जो उस विषय का कोई भी उल्लेख नहीं चाहते थे। भारत उस खाई को पाटने के लिए एक फॉर्मूला खोजने में सक्षम था। ये एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि है क्योंकि जब संयुक्त बयान के बिना कोई शिखर सम्मेलन खत्म होता है तो इसे हमेशा अध्यक्ष के लिए झटके के रूप में देखा जाता है। तो अब देखिए, शशि थरूर ने जिस तरीके से बयान की तारीफ की और जिस तरीके से उन्होंने चीजें कही है, तो साफ तौर पर अगर आप कहेंगे कि इसे लेकर अब बीजेपी भी इसे लेकर काफी तारीफ करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी नेता रविशंकर ने उसकी तारीफ की और कहा कि यह अच्छी बात है कि शशि थरूर पूर्व राजनीतिज्ञ रहे हैं। जिस तरह से पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने सम्मानजनक स्थिति हासिल की है, जिस तरह से सहमति बनी है, जिस तरह से अफ्रीकी संघ को G20 से सीट मिली है, यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत है। और क्या कुछ कहते नजर आए रविशंकर प्रसाद जी, जरा सुनिए। अच्छी बात है, वो फॉर्मर डिप्लोमेट रहे हैं। आज जिस तरह से मोदी जी की अगुवाई में भारत का मान बढ़ा है, जिस तरह से एक सर्वानुमति का कंसेंसस आया है, जिस तरह से क्या अमेरिका, क्या इंग्लैंड, क्या यूरोप, जिस तरह से अफ्रीकन यूनियन को जगह मिली है G20 में, तो ये तो भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है। और सभी दुनिया के देश एक स्वर में आए कि नहीं, हमें आक्रमणकारी विस्तारवादी नीति का विरोध भी करना है और विकास की बात भी करनी है। तो ये प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक काम किया है। तो थरूर साहब उसमें अच्छाई देख रहे हैं तो अच्छी बात है। उम्मीद करूंगा कांग्रेस के बाकी नेता भी, उनके नेता भी जो विदेश में घूम रहे हैं, इसमें कुछ अच्छा देखेंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने एक ऐतिहासिक काम किया है। अगर शशि थरूर को इसमें कुछ अच्छा दिख रहा है तो यह अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस के बाकी नेता, जिनमें विदेश यात्रा पर गए नेता भी शामिल है, इसमें कुछ अच्छा देखेंगे। वहीं बीजेपी नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने लिखा कि अब कट्टर कांग्रेसी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन की सराहना करते हैं। कट्टर कांग्रेसी शशि थरूर ने कहा कि यह बेहद सफल आयोजन था और ऐसा जश्न मनाया गया जैसा पहले कभी नहीं मनाया गया। यह देखकर अच्छा लगा कि थरूर पार्टी लाइन के ऊपर उठकर वही कह रही है जो पूरा देश और दुनिया पहले से कह चुकी है। वहीं बीजेपी नेता शहजाद पूरावाला ने कहा कि कांग्रेस और INDIA गठबंधन, प्रियंका वाड्रा ने G20 की आलोचना की तो शशि थरूर ने इसकी सराहना की। अधीर रंजन ने G20 डिनर में शामिल होने पर ममता की आलोचना की। खुद कांग्रेसी CM सुखविंदर अजय सुखू वहां थे। ऐसा तब होता है जब आपके पास कोई विजन या मिशन नहीं होता, सिर्फ विरोधाभास और नासमझ विरोध। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली डिक्लेरेशन पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बयान पर उनका जो है प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया कह रही है कि यह अब तक का सबसे सफल G20 था। चाहे कोई विपक्ष में हो, अगर उनके पास देश के प्रति प्रेम, वे इसे एक ऐतिहासिक रणनीतिक जीत के रूप में सोचेंगे और स्वीकार करेंगे कि भारत दुनिया में एक महाशक्ति के रूप में कैसे उभरा है। तो अब देखिए किस तरीके से जो है ये चीजें कही जा रही है। विपक्ष द्वारा भी सराहना की जा रही है इसकी सफलता की, तो बीजेपी की भी प्रतिक्रिया इस पर देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है। और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।